Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about water management, under which discuss about the different types of river valley projects related with the central government and along with that the state government. After that, we discussed about the river valley projects of Rajasthan, under which we discussed about the Chambal Valley project, Indira Gandhi Canal, Mahi Bajaj Sagar project, Bisalpur project, Sidmukh project, Sardar Sarovar Dam project, or we can say that Narmada project, Jakham project, Javai project, Panchna Dam project. Different kind of projects we have discussed. After discussing about all these kind of things, as the next we are going to start our discussion about water conservation. यानी वाटर मैनेजमेंट के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन का है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय वाटर कंजर्वेशन. ओके, तो वाटर रिसोर्स में नेक्स्ट पॉइंट वाटर कंजर्वेशन का मतलब वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन. So what do we actually mean by water resource conservation? जल संरक्षण क्या होता है? So actually collection of rainwater, collection of rainwater by proper water management. Okay, collection of rainwater या the process related with storing rainwater with proper water management methods. Okay, तो प्रॉपर वे में वाटर मैनेजमेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, वर्षा जल को संग्रहित करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन. गाइस, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, देन इन इंडियन कल्चर वी ऑलवेज हैव सिंपैथी फॉर वाटर कंजर्वेशन. मीन्स वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए नया नहीं है. द रूलर्स ऑफ ancient India, means the rulers related with the history of India, the money lenders, the local people constructed wells, step wells, ponds, lakes and other small water resources for local people. यानी हमारे यहाँ water has been considered as nectar. पानी हमेशा अमृत के समान समझा गया है. And in this way we always remain sympathetic towards water conservation. तो हमारे लिए कोई नया प्रोसेस नहीं है. If we talk about the Indus Valley civilization, then in Indus Valley civilization we find remains of wells, step wells, ponds, tanks and all these kind of things show us that even in Indus Valley civilization we had sympathy towards water conservation. Means एंशियंट इंडिया में भी वाटर कंजर्वेशन के लिए सिंपैथी थी, जल संरक्षण के लिए हमेशा से हमारे अंदर सद्भावना थी. इज दैट क्लियर? ओके, इफ वी टॉक अबाउट द मौर्यन पीरियड, देन अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ओके, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, a book written by Kautilya. So according to Kautilya's Arthashastra, Sudarshan Lake was constructed by Chandragupta Maurya. Okay, Sudarshan Lake एक बहुत ही फेमस लेक है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको बाद में आगे चलकर रुद्रदामन ने रिनोवेट करवाया था. इसके अलावा गुप्त शासक कुमारगुप्त ने भी इसका रिनोवेशन करवाया था. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स शो अस दैट इंडिया हैड अ sympathy towards water conservation from ancient period, from Indus Valley civilization till present. Okay, now if we talk about Rajasthan, then in Rajasthan also we had
sympathy for water conservation. As in Rajasthan, we have low rainfall. Along with that, Rajasthan is a drought prone area and here there is always a scarcity of water. यहाँ बारिश कम होती है, सूखे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इन दिस वे देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी राजस्थान में हमेशा ही होती है. तो ऐसे सिचुएशन में हम राजस्थान के लोग तो इन चीज़ों से परिचित हैं. वी आर वेरी फैमिलियर अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इन दिस वे इन राजस्थान वी ऑलवेज हैड सिंपैथी फॉर वाटर कंजर्वेशन. हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन हमेशा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है. मतलब हमेशा से हमने वाटर कंजर्वेशन को सीरियसली लिया है. एंड दैट्स वाई बाय द लोकल रूलर्स ऑफ राजस्थान, बाय मनी लैंडर्स, बाय साहूकार्स, along with that by the banyas, means the different kind of persons who were capable, constructed ponds, lakes, nadis, jhalras for potable water. Means इन सब का कंस्ट्रक्शन किया गया था एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर सोशल वेलफेयर. यानी हमारे राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है कि वाटर कंजर्वेशन के नाम पर जो स्टेप वेल्स, पोन्ड्स, वेल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसको धर्म से जोड़ा जाता था, उसको रिलीजियस इंपॉर्टेंस दिया गया था, इसको धर्म का काम समझा जाता था. आज भी आप लोग अपनी लोकल ट्रेडिशन में देखते हो कि हमारे यहाँ जिस मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम लोग पानी के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, टैंक्स वगैरह बनवाते हैं, मटके वगैरह रखवाते हैं. सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग शो अस दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टिल नाउ वी आर sympathetic towards water conservation और potable water supply. तो वैसा पहले भी था. Now as the next we are going to discuss about the different methods, different ways, different structures related with water conservation और storing rain water. यानी water management के जरिए water को कलेक्ट करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना, वाटर कंजर्वेशन. और इस वाटर कंजर्वेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. नाउ as the first structure we are going to discuss about step well. Okay, बावड़ी. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बावड़ी के बारे में. ओके, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल बावड़ी. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टेप वेल और बावड़ी, जो कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, कॉमन डायलेक्ट में. तो इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. In this, from entering part till midway, stairs are constructed. Bricks and artistic stones are used for the construction of these kind of step wells. Okay, along with that, इनका जो front side है, they are generally having corridors, यानी इनको ऊपर से corridor से decorate किया गया है. Along with that, to reach the middle part, there are stairs. Okay, and in these stairs we have arches, along with that ventilators, and in these ventilators we find images of local deities. Is that clear? तो इस पिक से आपने समझा कि स्टेपवेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है. अब इसको इजी वे में हम पॉइंट आउट करते हैं. ओके, द पॉइंट इज द स्टेपवेल. अब जो हमने अभी डिस्कस किया उसको फिर से हम रिवाइज करते हैं. A step well can be quadrilateral, round and oval in shape. ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर में हो सकता है, सर्कुलर राउंड शेप में हो सकता है, या ओवल शेप में भी हो सकता है. ओके, in the construction of these kind of step wells, generally bricks and artistic stones are used. Okay, bricks and artistic stones are used for the construction of these kind of step wells. Okay, from entry point till midway.
Okay, in these constructions we find the use of bricks, और इन bricks को यूज़ करते हुए इसमें बनाया क्या जाता है, इसमें स्टेयर्स बनाई जाती हैं, स्टेप्स बनाए जाते हैं। ओके, इसको स्टेप वेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टेयर्स होती हैं, इसमें स्टेप्स बने हुए होते हैं। ओके, यानी इसको हम सीढ़ीदार कुआं कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टेयर्स बनी हुई होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं उनकी वजह से इसको हम स्टेप वाला कुआं या हम कह सकते हैं कि सीढ़ीदार कुआं। ओके, तो स्टेप वेल नाम इसी वजह से इसका लिया जाता है, कॉमन डायलेक्ट में इसको बावड़ी रेफर करते हैं। इन दीज स्टेयर्स वी फाइंड वेंटिलेटर्स। ओके, इन स्टेयर्स में वेंटिलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना, वेंटिलेटर्स जनरली अपने यहाँ आप लोग अपने पुराने घर वगैरह जो होते हैं उनमें बने हुए होते हैं ना, मतलब एक अंदर होल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है छोटा सा, ऐसे इसमें वेंटिलेटर्स बने हुए होते हैं। ओके, और इन वेंटिलेटर्स के अंदर वी फाइंड स्टैचूज ऑफ लोकल डेटीज। यहाँ जो लोकल डेटीज हैं, जो स्थानीय देवता होते हैं, उनकी जो स्टैचूज होते हैं, उनकी मूर्तियाँ जो होती हैं उनमें फिट होती हैं। मीन्स दीज काइंड ऑफ बावड़ीज आर हैविंग अ religious importance along with social importance, and at the time of different kind of fairs and festivals these bawdis are used as a place of worship। यानी इन बावड़ीज में जैसे दिवाली का दिन होता है या फिर गणगौर पूजन होता है, ऐसे गणगौर के टाइम में ऐसे जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, उनमें उसमें इन बावड़ी का स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। दे आर रिलेटेड विद द रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अलॉन्ग विद दैट दीज काइंड ऑफ बावड़ीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू द कॉमन पीपल। तो इनका सोशल इंपॉर्टेंस भी होता है, यानी सोसाइटी के लोगों को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप वेल। ये बावड़ी का कंस्ट्रक्शन है, एक बावड़ी ऐसे बनी हुई होती है। ओके, नाउ आफ्टर दैट इन राजस्थान जनरली वी फाइंड स्टेप वेल्स इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट। ओके, राजस्थान के लगभग हर एक स्टेट में बावड़ी मिलती है, बट आउट ऑफ विच सम आर वेरी फेमस। ओके, इन विच the Tapi Bawdi, or we can say the Tapi Stepwell, Jodhpur. Tapi Stepwell, Jodhpur. Okay, along with that Bandharej बावड़ी और बंधारेज स्टेपवेल दौसा। ओके, इसके अलावा दौसा की सबसे फेमस चांद बावड़ी और चांद स्टेपवेल आभानेरी दौसा। ओके, चांद स्टेपवेल आभानेरी दौसा which is related with Chandrakumari. Okay, along with that the highest number of bawdis or stepwells we find in Bundi, and that's why Bundi is known as the city of stepwells. बुंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। Bundi is known as the city of stepwells. So this is the first structure related with water conservation in Rajasthan, जिसको हम रेफर करते हैं स्टेप वेल्स और बावड़ीज, और ये उसका स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन है कि ये कैसे बनता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ponds. Okay, so guys, in Rajasthan pond is also a source of water conservation. Have a look on this pic. This is the structure of a pond. तो आपने नोटिस किया होगा
कि पोंड एक खड्डे जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड जनरली दीज काइंड ऑफ पोन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन दी स्लोप एरियाज, मीन्स एरियाज सिचुएटेड नियर द स्लोप्स। तो ढलान वाले एरियाज के पास में इन पोन्ड्स को बनाया जाता है एंड इन राजस्थान पोन्ड्स रिमेंड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मीन्स वाटर फॉर irrigation and along with that potable water supply, potable water for the local people along with water for animals, ये हमेशा से एक मेजर सोर्स रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज पॉन्ड। तो नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर जो है ना वो पॉन्ड का है, तालाब का है। दीज काइंड ऑफ पॉन्ड्स जनरली फाइंड इन most of the districts, most of the regions of Rajasthan state, okay, and these ponds are having both religious and social importance, and in the history of Rajasthan we find that different kind of ponds were constructed by the different rulers, means the local rulers of Rajasthan, the money lenders, the baniyas, and along with that the common residents of that particular region। और इन ponds का construction generally near the slope areas होता है, means they are constructed near the slope areas। इनका construction जो होता है वो ढलान वाली जो areas होते हैं उनके पास में किया जाता है, means we can say that this kind of structure generally we find for a pond as you have already noticed in the pic। तो जैसा आपने देखा था कि एक पॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है, जो स्लोप एरियाज होते हैं उनमें इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड इन दिस वे दे आर द मेजर सोर्स ऑफ रेन वाटर कलेक्शन। ओके, और ऐसे जो पॉन्ड्स हैं वो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, बट आउट ऑफ विच सम आर वेरी फेमस, सम आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने यूज़ की वजह से, मीन्स यूज़ एट दैट टाइम व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टेड, उस समय जब इनको बनाया गया था उस टाइम उनका जो यूज़ है उसकी वजह से बहुत फेमस है। इन सच काइंड ऑफ पॉन्ड्स वी फाइंड पॉन्ड्स रिलेटेड विथ जैसलमेर, चित्तौड़, ओके, सो बनाकिया, ओके, बनाकिया एंड सोनापानी, सोनापानी ponds are related with चित्तौड़गढ़। ओके, यानी फेमस ponds हैं, तालाब हैं जो चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है। along with that गजरूप सागर, गजरूप सागर एंड गढ़सीसर, गजरूप सागर एंड गढ़सीसर ponds are related with जैसलमेर districts। ओके, सो गाइज ponds का इंपॉर्टेंस और ponds का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। दीज काइंड ऑफ ponds ऑलवेज रिमेन अ मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी के लिए है। पोर्टेबल वाटर फॉर मैन, विमेन, along with that animals, यानी आदमियों के लिए और जानवरों के लिए मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर पॉन्ड्स रहे जिनमें रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, यानी एक खड्डा जैसा बनाया जाता है, ढलान वाले एरियाज में होता है जिसमें वाटर फ्लो करते हुए आता है और स्टोर होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर पॉन्ड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नाड़ी। नाड़ी is a small pond actually, okay? तो नाड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटा तालाब होता है, ओके? सो नाड़ी इज जस्ट लाइक अ पॉन्ड, बस इतना है कि इसका जो साइज होता है थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ओके? सो वी कैन से दैट नाड़ी इज अ स्मॉल पॉन्ड, नाड़ी एक छोटा तालाब होता है, ओके? एंड दीज काइंड ऑफ नाड़ीज, or we can say that this structure of water conservation is generally constructed in western Rajasthan। इसका कंस्ट्रक्शन जनरली वेस्टर्न राजस्थान में किया जाता है, ओके? मीन्स वी कैन से दैट नाड़ी इज अ मेजर सोर्स ऑफ
water collection or major source of water availability in the western Rajasthan. Okay, generally these nadis remains 4 to 5 मीटर डीप, यानी इनकी डेप्थ जो होती है वो 4 से 5 मीटर होती है, स्लोप एरियाज में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. ओके, अब इनमें एक छोटी सी एक जो प्रॉब्लम है जो इनसे रिलेटेड होती है, एज दे आर हैविंग अ शॉर्ट डेप्थ ऑफ 4 to 5 meter along with collection of soil brought in by flow of rainwater. Generally वाटर रिमेन स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी सिंपल सा पॉइंट है, एक इनका डेप्थ कम होता है, दूसरा जो वाटर के साथ में जो सॉइल फ्लो करते हुए आती है वो इनके नीचे स्टोर हो जाते हैं, उसका कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो नीचे का लेवल होता है वो ऊपर उठ जाता है. इन दिस वे वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, बहुत ही मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए इसमें वाटर स्टोर करके रखा जा सकता है. ओके, सो आफ्टर द कंप्लीट यूज ऑफ वाटर द सॉइल इज रिमूव्ड टू इंक्रीज द डेप्थ, यानी इसमें इसकी डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए शुड बी रेगुलर, द सॉइल शुड बी रेगुलरली रिमूव्ड, उस मिट्टी को रेगुलरली हटाया जाना चाहिए. Is that clear? So this is what we call a nadi. Okay, and this nadi is having a great importance of for potable water for man, women, and along with that for animals, and a major source of potable water in western Rajasthan. Okay, so guys, in this way here we have discussed about 3 major structures, sources of water collection, water conservation related with Rajasthan: step wells, the ponds, and along with that nadi. About the remaining sources of water collection we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.